A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I'm Sumita Panigai, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. But before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. I'm teaching you science, and we are going to read chapter 2, that is matter around us pure? Okay, we have already read the first chapter, okay, and this is the second one. We have read matter in our surroundings, which I have already completed with 5 lectures. So if you haven't watched those lectures, go and watch it in the Play Store. It is available. Then come and watch this one. All right. So a bit of connectivity is there. So it will be easy for you to learn the things if you have already learned the chapter 1. So we are going to read chapter 2, and today is the first session. Okay. So without wasting any further time, let's get started to know that what we are going to read today. Okay. Today we'll be reading classification of matter, pure substance, mixture and types of mixture. Okay. So these are the 4 topics that we are going to cover today. Classification of matter, pure substances, mixture and types of mixture. Okay. All right. So let's start. So first is classification of matter. We have already read what is matter in the first chapter. So can anybody tell me what is matter? Matter is anything that occupies space and has mass. We already know that matters are actually classified into 3 types, that is solid, liquid and gas. Okay, there is also a 4th state of matter known as plasma state, which we can find in case of stars, galaxies or sun. All right, and today we are going to read much about matter. Okay. So basically, physically they have classified into 3 types that we have read in the first chapter: matter in our surroundings, that is solid, liquid and gases. We even read the physical properties of the matter. Okay, so what are the physical properties of matter? Like they occupy space, they have mass and all. We learned it in chapter 1. All right, so if you have forgot all those stuffs, go and watch the first chapter so that it will be much easier for you to read and learn the second one. Okay, and today we are going to read about the chemical composition of matter, which is basically into 2 types. It has divided, that is pure substances and mixtures. So matter is of 3 types: solid, liquid and gas. Again, this matter is chemically classified as pure and mixture. All right, so let's read it. All right. So matter is chemically classified as pure substance and mixture. As we can know from the term itself, pure substance. Pure substance means there is no other mixing of the compounds. Okay. Whereas in mixture, there are one or more elements or compounds mixed together in order to form the matter. Okay. So matter in pure substance, it is divided into elements, and the second one is compounds. Okay. Whereas in mixture, it is defined as homogeneous mixture and heterogeneous mixture. ठीक है, तो मैटर जो है प्योर सब्सटेंस केमिकली डिवाइड है या फिर मिक्सचर्स के तौर पे डिवाइड है. प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आता है, एक ही प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ही आएगा. कंपाउंड अगर आता है तो एलिमेंट बहुत सारे एल्यूमिनियम मिल के एल्यूमिनियम कंपाउंड बना रहे हैं तो प्योर सब्सटेंस हो रहा है. जबकि मिक्सचर के केस में क्या हो रहा है, मिक्सचर में जो होता है होमोजेनस यानी सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स मिला के होमोजेनस बन रहा है, और हेट्रोजेनस यानी कि 2 वैरायटी या 2 से ज़्यादा वैरायटी मिलके मिक्सचर बन रहे हैं. ठीक है, तो इनके बारे में ये केमिकली जो क्लासिफाइड है मैटर एज प्योर और मिक्सचर, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, चलो. सो फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस इज मिक्सचर. ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या है? It is a substance which consists of a single type of substance, that is element or compound. तो प्योर का मतलब और मिलावटी नहीं है. ठीक है, देयर इज नो मिलावटी. प्योर से ही पता चल रहा है, प्योर मतलब वही पर्टिकुलर चीज से ही वो चीज बना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, कॉमन सॉल्ट. अच्छा, शुगर जो होता है वो क्या होता है? सॉल्ट ले लो.
सॉल्ट का क्या होता है, सॉल्ट जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम दैट, सॉल्ट कहाँ से आता है, समंदर से आता है। तो जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, इवेपोरेशन से वी ऑब्टेन सॉल्ट। तो सॉल्ट जो होता है एक ही टाइप ऑफ सब्सटेंस से बना हुआ है, सो दैट इज टर्म्ड एज प्योर। शुगर भी वैसे एक ही टाइप ऑफ सब्सटेंस से बना हुआ है। ऑक्सीजन अवेलेबल है नेचर में, एक ही टाइप ऑफ एलिमेंट ओ से बना हुआ है, O2। वाटर H2, ठीक है, हाइड्रोजन H2, कॉपर Cu, आयरन Fe। तो ये सब क्या है, एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट से या कंपाउंड से प्योरली वही चीज बना हुआ है, कोई मिलावटी नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज प्योर सब्सटेंस। ऑलराइट, ओके। नाउ मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर जो होता है, दो प्योर सब्सटेंस या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस अगर आप मिला देते हो, देन इट फॉर्म्स मिक्सचर। ओके, फॉर एग्जाम्पल सी वाटर। सी वाटर में क्या होता है, वाटर भी है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके अलावा विल वी बी फाइंडिंग सॉल्ट। ओके, मिनरल्स हैं बहुत सारे, सॉइल से जो हम मिनरल्स लेते हैं, प्लांट्स हमारा जो लेता है, उसमें फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे प्योर सब्सटेंसेस मिलके मिक्सचर बने, मिनरल बना है। ठीक है, सॉइल बहुत सारा सॉइल है, जैसे कि पोरस सॉइल है, क्ले है, ओके, सैंड है, ये सब मिलके सॉइल बन रहा है। एयर में क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो दीज ऑल प्योर सब्सटेंसेस, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलके जाके सैंड बन रहा है। सॉल्ट, शुगर, वाटर। तो शुगर को अगर या सॉल्ट को मैं वाटर में डाल दूँ तो मेरे पास ऑलरेडी पानी है जिसमें हाइड्रोजन है, वाटर है, ऑक्सीजन है, उसके अलावा आई एम पुटिंग शुगर इन इट। तो क्या हो रहा है, मिक्सचर बन जा रहा है। या सॉल्ट इन वाटर, वाटर में अगर मैं सॉल्ट डाल रही हूँ तो दो चीजें मिलके मिक्सचर बन रही हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस में ओनली वही एलिमेंट या कंपाउंड है, और मिक्सचर में दो से ज्यादा प्योर कंपाउंड, प्योर सब्सटेंसेस मिलके वो मिक्सचर बन रही है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस एज मिक्सचर। अब हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। प्योर में आता है एलिमेंट या कंपाउंड, मिक्सचर में होमोजेनस या हेटेरोजेनस। ठीक है, चलो पहले हम पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो प्योर में क्या होता है कि प्योर इज मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि हमने पढ़ा कि प्योर में वही एक चीज है और कुछ नहीं है। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड टू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स। अब जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है, अब उस ऑक्सीजन को हम और अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट और प्योरेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, उसको और ब्रेक डाउन हम या सेपरेट नहीं किया जा सकता है बाय एनी फिजिकल मीन्स। ऑलराइट, एंड उसके अपने अपने प्रॉपर्टीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर हो गया या आपका H2 हो गया, सबका अपना अपना खुद का प्रॉपर्टी है। वो ऑलरेडी इतना प्योर है कि उसको और ब्रोकन डाउन हम नहीं कर सकते। ठीक है, वो सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से बना हुआ होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर जो होता है दो या ज्यादा सब्सटेंसेस से, जो प्योर सब्सटेंसेस से वो मिक्सचर बना होता है। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। हम फिजिकल मेथड से मिक्सचर्स अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सॉल्ट और वाटर होता है, तो सी वाटर में ऑलरेडी हमें सॉल्ट मिलता है, तो वी कैन एक्चुअली सेपरेट इट बाय इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के प्रोसेस से हम सॉल्ट को वाटर से अलग कर सकते हैं। ओके, सो फिजिकली मेथड में मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। ऑलराइट, और वो अपने अपने सबके अपने अपने अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स क्या होता है, ठीक है, हमें पता चल गया कि प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में वी कैन फाइंड एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में सपोज आगे हाइड्रोजन, यही हाइड्रोजन जब दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो क्या होगा, कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट मतलब एक, कंपाउंड मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे। और मिक्सचर में क्या होगा, दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिलके मिक्सचर बनाएंगे। अब मिक्सचर दो प्रकार का होता है, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। चलो पढ़ते हैं। The mixtures are of two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Alright, तो ये क्या होता है बताओ। होमोजेनस मिक्सचर, होमो से पता चलता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो सेम टाइप ऑफ से मिक्सचर बनेगा, सेम टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस से वी हैव मेड अ मिक्सचर। सो इट इज अ मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। तो ऐसा नहीं कि मैंने अगर नमक डाल दिया पानी में तो आधा नमक ऊपर और आधा नीचे रहेगा, ऐसा नहीं। पूरे सोल्यूशन में टोटल इक्वल अमाउंट ऑफ जो नमक है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा हर एक मॉलिक्यूल्स के साथ, सेम ही टाइप के। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर से चम्मच से अगर पानी पी रही हूँ, नमकीन पानी, तो ऊपर ज़्यादा नमकीन और नीचे कम नमकीन, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब थ्रू आउट जितना नमकीन होना चाहिए उतना ही नमकीन लगेगा। ऐसा कुछ नहीं कि ऊपर ज़्यादा कम लगेगा, नीचे ज़्यादा लगेगा, ऐसा नहीं होता। होमोजेनस सेम यूनिफॉर्मिटी रहती है थ्रू आउट दैट ऑफ योर
solution. Okay. होमो मतलब सेम एंड सेकेंडली दीज आर नॉट विजिबल विद दैट ऑफ नेकेड आइज. हम ये मिक्सचर्स को जो अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, विजिबिलिटी नहीं रहती है हमारी पार्टिकल्स में. नेक्स्ट इज दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. ये होमोजेनस मतलब सेम टाइप ऑफ मिक्सचर है. अब इसको जो होता है हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सॉल्ट को पानी में डाल देती हूँ और मिला देती हूँ तो थ्रू आउट द मिक्सचर मेरे को सेम ही सॉल्ट का टेस्ट आएगा. अगर ऊपर मेरे को कम सॉल्ट लग रहा है तो नीचे भी मेरे को कम ही सॉल्ट लगेगा. ऐसा नहीं कि ऊपर ज़्यादा और नीचे कम लगेगा. थ्रू आउट द मिक्सचर उनकी सेपरेशन, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी रहती है वो पूरी सेम ही रहती है. हम खुले आंखों से इसको नहीं देख सकते. नेकेड आइज से हमें ये पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, ठीक है. और अगर मैं फ़िल्टर करने जाऊँ, मेरे को अगर फ़िल्ट्रेशन में अगर छन्नी पकड़ के उसको छानूँ तो मेरा सॉल्ट और वाटर अलग नहीं होगा, वो सेम ही उसी में चला जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज द मिक्सचर इज स्टेबल, द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन. तो ये स्टेबल ही रहता है थ्रू आउट द मिक्सचर. यूनिफॉर्मिटी इज सेम, डिस्ट्रीब्यूटिविटी सेम रहती है, ठीक है. द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर. तो बेसिकली होता है क्या कि होमोजेनस मिक्सचर में, जैसे कि मैम हमने पढ़ा हुआ है टिंडल इफेक्ट, ठीक है, और हम जब भी कोई लाइट पास कर रहे हैं तो नॉट विजिबल इन द मिक्सचर, नहीं दिखेगा, ठीक है. तो सपोज आप एक काम करना, आज ही जाना एक ग्लास में आप शुगर सोल्यूशन या फिर सॉल्ट सोल्यूशन बना लो, उसके बाद एक टॉर्च मारो सोल्यूशन के थ्रू. तो ये क्या होगा कि आपको एक बीम ऑफ लाइट पानी के अंदर से जाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो पर्टिकुलर प्लेस है दैट इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय दैट ऑफ द सॉल्ट मॉलिक्यूल्स या शुगर मॉलिक्यूल्स. दैट्स वाई जो भी होमोजेनस मिक्सचर होता है वहाँ से अगर हम लाइट पास करते हैं तो हमें बीम ऑफ लाइट विजिबिलिटी नहीं आती है, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी पार्टिकल्स वो स्पेस ले चुके हैं, ठीक है. दैट्स वाई वो टोटल नहीं दिखता है बीम ऑफ लाइट, वो एकदम स्कैटर्ड के रूप में आ जाता है, ठीक है. ओके. बहुत सारे एग्जांपल्स है होमोजेनस यानी कि सेम, मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, कॉपर सल्फेट, तो बहुत सारा हो सकता है, ठीक है. समझ गए. तो होमो मतलब सेम, ठीक है. थ्रू आउट जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स होता है सेम होता है. हम अगर टॉर्च बीम ऑफ लाइट मारते हैं तो हमें नहीं दिखेगा. पार्टिकल्स आर स्टेबल, फिल्टर नहीं कर सकते हैं, नॉट विजिबल इन नेकेड आईज, ठीक है. शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ये सब उसका एग्जाम्पल है. ओके. नेक्स्ट हेट्रोजेनस. Now what are heterogeneous? Heterogeneous जो होता है more than one kind of pure substances are being added to that of mixture. और ये जो होता है नॉन यूनिफॉर्म रहता है. फॉर हेट्रोजेनस फॉर एग्जाम्पल आप जब कॉर्नफ्लेक्स खाते हो, ठीक है, कॉर्नफ्लेक्स में क्या होता है, वी ऑलरेडी ऐड कॉर्नफ्लेक्स टू दैट ऑफ मिल्क. तो मिल्क जो होता है मेरे लिए एक सब्सटेंस है और एक सब्सटेंस कॉर्नफ्लेक्स है. तो मैं क्या कर रही हूँ, मिल्क को डाल रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स में या कॉर्नफ्लेक्स में मिल्क को डाल रही हूँ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक हेट्रोजेनस मिक्सचर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो अलग टाइप की चीज़ें ऐड हो रही हैं, ठीक है ना. सो इनका नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है. जैसे कि मेरा सॉल्ट वाटर था, उसमें थ्रू आउट द मिक्सचर मेरा सेम ही टाइप का टेस्ट हो रहा था. लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा. हेट्रोजेनस में हो सकता है आपको एक जगह खाली दूध पीने को मिले और एक जगह आपको कॉर्नफ्लेक्स के साथ आए. एक जगह एक कॉर्नफ्लेक्स आ सकता है, एक जगह आपको चार कॉर्नफ्लेक्स आ सकते हैं. तो थ्रू आउट जो मिक्सचर होता है उनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है. कहाँ पे, हेट्रोजेनस में. सेकेंडली दिस कैन बी विजिबल विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई. जो भी मैं कॉर्नफ्लेक्स बना रही हूँ दूध में डाल के, इट इज विजिबल टू माई नेकेड आई, राइट. ओके. नेक्स्ट इज दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. हम हेट्रोजेनस मिक्सचर को फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं. द मिक्सचर इज अनस्टेबल, ठीक है, पार्टिकल सेटल डाउन भी हो सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे कॉर्नफ्लेक्स नीचे रह सकता है या चोकोस नीचे रह सकते हैं या दूध अलग हो सकता है, ठीक है. सो दे कैन बी, they are unstable, they can be settled down. Okay. The path of beam of light is visible in the mixture. तो यहाँ पे क्या होता है, जब मैं अगर मैं एक ग्लास में ले लेती हूँ दूध और उसमें थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स डाल देती हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सारा कॉर्नफ्लेक्स पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा दैट ऑफ द मिक्सचर, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है. तो मैं जब भी बीम ऑफ लाइट मारूंगी तो मेरा बीम ऑफ लाइट जो होगा उस चीज़ से विजिबल होगा, ठीक है. वाटर में अगर डालोगे तो विजिबल होगा, मिल्क में विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं आती है, ठीक है. वी हैव ऑलरेडी रेड दैट. ऑलराइट. सो हेट्रोजेनस मिक्सचर में और होमोजेनस मिक्सचर में डिफरेंस समझ गए. फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड. तो सैंड और सॉल्ट डाल दो, सल्फर आयरन, फिलिंग, वाटर, ऑयल. अच्छा, सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑयल एंड वाटर. तो ऑयल और वाटर अगर डाल दोगे तो ऑयल और वाटर क्या मिलता है, नहीं मिलता है. ऑयल ऊपर रह जाता है, वाटर नीचे रह जाता है,
ठीक है, उसको सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, ऑयल सेपरेट हो सकता है, ठीक है, वो तो ऑलरेडी ऊपर है। बीम ऑफ लाइट मारोगे तो ऑलरेडी ऑयल ऊपर रहेगा, पानी नीचे, तो आराम से बीम ऑफ लाइट पास हो जाएगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स जहाँ पे दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिलके हेट्रोजेनस अलग टाइप का मिक्सचर बनाएगा। जबकि होमो में क्या होता है, सेम टाइप में बनता है और डिस्ट्रीब्यूटिविटी थ्रू आउट दी सेम होती है और वहाँ पे विजिबल ऑफ द लाइट नहीं होती है। ओके, यू गॉट इट। एग्जाम्पल कॉर्नफ्लेक्स का हो सकता है, ठीक है। चलो, सो दिस इज व्हाट वी रेड टुडे। सो आज हमने क्या पढ़ा बताओ। What we read, let's discuss a bit. So basically we read about pure substances and mixtures. Okay, so pure substances और mixture में हमने जैसे matter में पढ़ा था कि matter जो होते हैं तीन form में होता है, that is solid, liquid and gaseous. Okay, now this matter chemically are classified as pure substance and mixtures. अब pure substance क्या होता है? Pure substance are again classified as elements and compounds. एलिमेंट्स में जैसे कि आप नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, गोल्ड, पोटेशियम, कैल्शियम, एनीथिंग। ओके, जब वही दो पोटेशियम मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा, वही दो ऑक्सीजन मिलेगा तो O2 बनेगा, तीन ऑक्सीजन मिला तो ओजोन मिला। तो एक ही टाइप के जो एलिमेंट्स हैं जब कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ तो वो ज़्यादा हो जाएंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं कंपाउंड। ओके, बट एट द सेम टाइम मिक्सचर में क्या होता है, दो से ज़्यादा जब प्योर सब्सटेंसेस मिलते हैं तब उन्हें मिक्सचर बोलते हैं। सेम टाइप का मिला तो होमोजेनस और अलग अलग टाइप्स के मिले तो हेट्रोजेनस। ठीक है, वही है, ठीक है। अब मिक्सचर जो होता है बेसिकली होमोजेनस मिक्सचर जो होता है दैट आर एक्चुअली नॉट विजिबल इन द नेकेड आई, उनका थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है। लाइक सॉल्ट वाटर, अगर ऊपर सॉल्टी लग रहा है तो नीचे में सॉल्टी लगेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर सॉल्टी और नीचे सॉल्टी नहीं लगेगा। फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो नहीं दिखेगा। ठीक है, हेट्रोजेनस में क्या होता है, हेट्रोजेनस में जो होता है दैट इज टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर एडेड इन ऑर्डर टू फॉर्म अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। Okay, they are non-uniform throughout, they are visible with the help of naked eyes और यहाँ पे जो होता है beam of light pass कर सकता है और light filtration से हम इसको separate कर सकते हैं। So this is what we read today. Okay, so matter का हम थोड़ा chemically हम we discussed a bit like pure substances क्या है, pure environment में मिलता है और एक है mixture जो कि मिला के मिलता है। तो प्योर सब्सटेंसेज आर अगेन क्लासिफाइड एज दैट ऑफ एलिमेंट्स एंड व्हेन दिस एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर दे फॉर्म कंपाउंड। एट द सेम टाइम मिक्सचर जो होता है होमोजेनस, सेम टाइम में प्योर सब्सटेंसेज फॉर्म होमोजेनस मिक्सचर लाइक दैट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर and that of your heterogeneous when cornflakes or that of your sand and soil, these are examples of heterogeneous mixture. Okay, so this is all for today. I hope that you like the session. This is the first lecture of your second chapter, that is acid, bases, and salt. Okay, not acid, bases, and salt. We are reading uh, is matter around us pure. Okay, so ये आपका second lecture था और first lecture है is matter around us pure का। तो आई होप कि आपको ये सही लगा होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो हमने यही पढ़ा ना, हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ लिया, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर क्या है और टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी रेड टुडे एंड आई होप दैट यू हैव नो डाउट रिगार्डिंग दिस सेकेंड चैप्टर, क्योंकि हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ चुके हैं, मतलब मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ चुके हैं and this is your second one. Okay, so if you have any doubt let me know in the comment section, I'll definitely answer. Okay, until then I hope that you guys are safe and doing good. See you next in this, see you in the next class. All right, okay, bye guys.